નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. ગુજરાતમાં શિક્ષણનું મોડેલ કેટલું વાઇબ્રન્ટ? આ સવાલ એટલા માટે કેમ કે આજે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો મામલે શિક્ષણ મંત્રી એક સ્ટેટમેન્ટ આપે છે અને કોંગ્રેસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સવાલ કરે છે કે જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં તમે શિક્ષણના મોડેલની વાત કરો છો, ડ્રોપઆઉટ રેશિયો મામલે ગુજરાત દેશમાં ત્રીજા ક્રમે છે. તો આ વાર પલટવાની લડાઈ તો શરૂ રહેશે. સૌને ખબર છે કે કેટલા ઓરડાની ઘટ છે, કેટલા ઓરડા જર્જરિત છે, કેટલા શિક્ષકોની ભરતી બાકી છે, ભરતીઓ બહાર પડે છે, સમયસર શિક્ષકો શાળાએ પહોંચતા નથી. ઉપરથી ઘણી બધી સરકારી શાળાઓને તાળા લાગી ગયા એ અલગ. પ્રાઇવેટ શિક્ષણ ખાનગીકરણના રાફડા વચ્ચે સૌથી મોટો સવાલ શહેરોમાં વસતા એ તમામ પરિવારો માટે છે કે જે માત્ર બે છેડા ભેગા કરવામાં જિંદગી વિતાવી નાખે છે. મહિને 10 કે 12 હજાર ફી ભરીશું ત્યારે તમને પ્રાઇમરી સુધીનો ખર્ચ પોસાશે કે નહીં એ તમારી જાતને તમારા હૃદય પર હાથ મૂકીને તમારા અંતરાત્માને પૂછજો. આ તમામ પરિસ્થિતિમાં શિક્ષિત બેરોજગારીની પરિસ્થિતિ અલગ. પણ જ્યાં સુધી શિક્ષણનું માળખું, શિક્ષણની જે સિસ્ટમ છે તેના પર વાર તહેવારે સવાલ ઉઠે છે. પણ એ શિક્ષણને દુરસ્ત બનાવવા માટે જે યોજનાઓ છે સરકારની, એ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સથી લઈને ઘણું બધું કરી રહી છે સરકાર. દર વખતે બજેટમાં અલગ અલગ પ્રાવધાનો પણ હોય છે, રૂપિયા પણ ફાળવાય છે. પણ પ્રાથમિક શિક્ષણથી લઈને તમે માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધી જાઓ તો પછી સરકારી શિક્ષણ પર અથવા તો સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર શું એવી પરિસ્થિતિ છે કે લોકોને વિશ્વાસ નથી રહ્યો, અથવા તો જનતાનું માઇન્ડસેટ એવું થઈ ગયું છે કે નહીં, મારો બાળક પ્રાઇવેટમાં ભણશે, ફી પોસાય કે ન પોસાય, ગમે તેટલા છેડા અમે ભેગા કરી લઈશું, પણ મારે સરકારીમાં નથી ભણાવવું. પણ આ તમામ વચ્ચે જ્યારે આંકડો આવે કે ડ્રોપઆઉટમાં સ્થિતિ ગંભીર છે, ડ્રોપઆઉટમાં એમાં પણ 9 અને 10 ધોરણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો જો પરિસ્થિતિમાં એટલો ખરાબ હોય, 23% વધુ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હોય, આ આંકડો આવે તો શિક્ષણ મંત્રી એક બાઇટ રિલીઝ કરે છે મીડિયા માટે કે જે અહેવાલો ચાલે છે એ જે 23%નો જે રેશિયો છે, ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ધોરણ 9 અને 10નો, એ 2021-22નો છે. અને હાલ જે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો છે તે ઘણો બધો ઓછો છે. શિક્ષણ મંત્રી કહે છે 5.4%. તો માત્ર શું આંકડાની રમત છે અથવા તો જમીની વાસ્તવિકતા અલગ છે? કેમ કે 7 જિલ્લામાં ડ્રોપઆઉટ રેટ 30%થી વધુ છે. એ 7 જિલ્લામાં દ્વારકા છે, પાટણ છે, ડાંગ છે, કચ્છ છે, બોટાદ છે, વડોદરા છે અને ખેડા છે. આ જિલ્લા કે જ્યાં સૌથી વધારે બોટાદની વાત કરીએ 32.74%, દ્વારકામાં 35.45%. તો આ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો શું 2021-22નો છે તો હતો જ ને, એ સ્વીકારે છે શિક્ષણ મંત્રી. પણ કહે છે કે વર્તમાન સ્થિતિ સારી છે, સરકાર બધું જ કરી રહી છે અને સરકારે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડ્યો, 5.4% પર લાવ્યા અને શિક્ષણ વિભાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપનિંગ શાળાની વ્યવસ્થા કરી છે અને આંકડા 2020-21ના છે. કોંગ્રેસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે છે અને કોંગ્રેસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહે છે કે દેશમાં ડ્રોપઆઉટના મામલે ગુજરાત ત્રીજા ક્રમે છે. હવે આ ચિંતાજનક બાબત છે કેમ કે 1 થી 6 કે 6 થી 8ની વાત નથી કરી રહ્યા, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની વાત કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા શિક્ષણમાં બદલાવ આવ્યા, નવી શિક્ષણ નીતિ આવી, પણ સામે શાળામાં ઓરડાની ઘટ છે, ઓરડામાં શિક્ષકોની ઘટ છે અને સામે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો. તો 3 ક્ષેત્રે લડાઈ લડવાની છે. એના માટે જે લાંબા ગાળાના આયોજન છે, શું એ સરકાર પાસે છે અથવા એ છે તો દર 5 કે 10 વર્ષે જે એસેસમેન્ટ થાય છે એમાં કેટલો સુધારો આવે છે? કેમ કે આ પરિપત્ર જે બહાર પડાયો છે તેમાં સૌથી ચિંતાનો વિષય એ છે કે 7.58 લાખથી વધુ બાળકો અનટ્રેસ અને ડ્રોપઆઉટ છે કે જેને શાળા છોડી, સરકાર પણ એવું નથી પ્રયત્ન નથી કરતી, પ્રયત્ન કરે છે. શાળા છોડી તો એ શાળા કેમ છોડી, એમને ફરીથી મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવામાં આવે, શાળામાં લાવવામાં આવે, આ બધા કારણો હોય છે, એક્સરસાઇઝ છે. એ આંકડો છે 7.58 લાખથી વધુ બાળકો. હવે કોંગ્રેસ કહે છે કે 21 પ્રવેશોત્સવ કર્યા, શિક્ષણ વિભાગે જે દાવા કર્યા તમામનો પરપોટો ફૂટી ગયો અને સ્થિતિ આ પ્રકારે છે તો આટલા બધા પૈસા ખર્ચીએ છીએ, પરિણામ શું મળે છે? અને 1 લાખ બાળકો અમદાવાદમાં ટ્રેસ નથી થઈ રહ્યા, જેને શાળા છોડી છે. એક પરિપત્ર કરવામાં આવે છે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અને તમામ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને એ સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવે છે. નવેમ્બરના અંત સુધી સર્વેક્ષણ ચાલશે કે સર્વેક્ષણ કરો અને સર્વે થકી એ જાણો કે કેમ આ બાળકોએ શાળા છોડી. તો આ પ્રક્રિયા તો ચાલુ જ છે. ઘણા બધા પરિપત્રો છે એ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સુધી સીમિત રહે છે, પબ્લિક ડોમેનમાં ઘણી વખત આવતા પણ નથી, પણ ઘણી વખત મીડિયા સુધી પહોંચે છે, ઘણી વખત અલગ અલગ નેતાઓ સુધી પહોંચે છે.
ત્યારે મીડિયા માધ્યમોમાં સ્ટોરી બને છે અને સામસામે જવાબ અપાય છે, ક્યાંક સ્વીકારાય છે, ક્યાંક આના કરતાં આ સારું છે, એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ થઈ. તો કેમ ડ્રોપઆઉટ અને ગુજરાતના શિક્ષણ મોડેલમાં જે ખરેખર જે કચાશ રહી ગઈ છે, કામ થવું જોઈએ, સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે? તમે પણ સ્વીકારશો હજારો શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે, તો શિક્ષકો વગર બાળકો શું ભણી લેશે? જ્ઞાન સહાયક ક્યાં સુધી? પ્રાઇમરીમાં કાયમી શિક્ષકોને જો પાયાના શિક્ષણમાં કચાશ રહેશે તો આટલી લાંબી એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છીએ તેનો મતલબ શું? જોઈએ શું કહ્યું શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે અને કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ગુજરાતના મનીષ દોશીએ આ મુદ્દે. ધોરણ 1 થી 8માં વિદ્યાર્થી ભણે છે, 8માં પછી એડમિશન ક્યાં લેશે એનું અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ, ગવર્મેન્ટ ધ્યાન રાખે છે અને વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધે એના માટેના પ્રયત્નો કરીએ છીએ. એના માટે આપણે ગયા વર્ષથી GSOS ગુજરાત સ્ટેટ ઓપનિંગ સ્કૂલની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, એટલે એમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લઈને આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે એનો આંકડો કદાચ આ મિત્રો પાસે ના હોય, એટલે આ જે મેટર જે છપાઈ છે એ તદ્દન સ્થાને છે અને સુધારા સાથે એને ધ્યાને લેવા માટે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે 2023-24નો ડ્રોપ આઉટ રેટ છે 5.4 છે. બાળકો શાળાઓમાં 1 થી 5 અને 6 થી 8 અને ત્યારબાદ અભ્યાસ આવવાનું બંધ કરી દે તેવા વિદ્યાર્થીઓના સર્વેની અંદર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં 3જા નંબરે આવે એ આપણા સૌના માટે ચિંતાનો વિષય છે. અને શિક્ષણ વિભાગ જે ભ્રષ્ટાચારનું એપી સેન્ટર છે તેની માટે જાગી જવાનો સમય છે. 21 વખતના પ્રવેશ ઉત્સવ, કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ, મોટી મોટી જાહેરાતો અને વાહવાઈ લૂંટનાર ભાજપાના સરકારે અને શિક્ષણ વિભાગે જે વાતો કરી તેનો પણ આ પરપોટો ખોલતું આ સર્વે સ્પષ્ટ દેખાડે છે. જો ગુજરાતમાં અને કોઈ પણ સરકારી વિભાગમાં કોઈ સર્વે થાય, આંકડાઓ છે, સરકારી આંકડાઓ આવતા થોડી વાર લાગે. જો 21-22ના જ આંકડાઓ હોય ને કુબેર ડિંડોર કહી રહ્યા હોય કે હાલની પરિસ્થિતિ એ પ્રકારની છે 5.4%, તો સરકારે પણ આંકડો જાહેર કરવો જોઈએ. આપણી સાથે પૂર્વ શિક્ષણ અધિકારી અને शिक्षणविद KR पोटा जुड़ाए गया है. पोटा जी, आपका स्वागत है. पोटा सर, जहां तक ड्रॉप आउट की बात है, ड्रॉप आउट में 21-22 में अगर कक्षा की बात करें 9 और 10 में 23 के आसपास ड्रॉप आउट रेशियो हो, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ अहमदाबाद में ही है 1 लाख बच्चे हैं जो अनट्रेस्ड है, मतलब ट्रेस नहीं किया जा सकता, जो मतलब फिर से उसको स्ट्रीम में लाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं लोग, मतलब एजुकेशन सिस्टम कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है. लेकिन सही में क्या आंकड़े, क्योंकि आंकड़े में बात ये होती है ना, आंकड़े दिखाते कम है छुपाते ज्यादा है, ये आंकड़े से भी हटके स्थिति है? अगर है तो क्या इसका स्वीकार करना चाहिए, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में बड़ा बदलाव आया है और 23 की जगह 5.4% का रेशियो है, तो ये क्या आपको सही लगता है? अहिर साहब, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल स्टैंड कुछ भी हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जहां तक सर्वे का सवाल है हमें ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करनी चाहिए. कितनी एजेंसियां सर्वे करती हैं, कितनी नहीं करती है, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव सर्वे के टाइम पे इनके पास में होता है या नहीं होता है, सर्वे की क्या प्रणालिका है, किस प्रणालिका से ये करते हैं, कौन सा एरिया ये लाभार्थियों का लेते हैं, किस क्षेत्र को ये चिन्हित करते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और एक बेस की बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है सरकार की जवाबदारी वो 6 to 14 और NEP में 6 to 18 ईयर्स के विद्यार्थियों की जवाबदारी है. रहा सवाल माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और हायर एजुकेशन का, तो वहां पे बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के हिसाब से या रोजगार लेने के हिसाब से आगे पढ़ता है. अब उसकी आर्थिक और सामाजिक जवाबदारियां, उसका आर्थिक और सामाजिक पहलू क्या है, उसने क्यों ड्रॉप आउट हुआ है, उसके ड्रॉप आउट के क्या कारण है, नंबर 1. नंबर 2 क्या है कि आज इतनी फैकल्टीज खुल गई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत है, तो क्या इन आंकड़ों का यहाँ कोऑर्डिनेशन होता है या नहीं होता है? क्योंकि मैंने आज दिन तक जो मीडिया की खबर देखी है उसमें कहीं पे भी ये फलित नहीं होता है. और दूसरा, मिनिस्ट्री से और सेक्रेटरीट से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये आंकड़े जो हैं
उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ होती है। नहीं सर, नहीं सर, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि 23% का जो ड्रॉप आउट रेशियो है 2021-22 का है, हाँ, ये तो क्लियर कट बात बोली। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो अनट्रेस बच्चे, हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनका आंकड़ा 7.58 लाख से भी ज्यादा है, जिसको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है। तो क्या हमें स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से लेके छोटी स्कूलें बंद करके एक सेंटर, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उससे क्या हालत अच्छे होंगे? क्योंकि आज के दिनों में सर हजारों जो स्कूल है उसमें बैठक की व्यवस्था नहीं है। आज ही की तारीख में सरकारी आंकड़ा जो विधानसभा में एक फ्लोर पे जो आता है, हम जानते हैं कि कितने हजार जो शिक्षक है उसके पद खाली है, कोई भर्ती एक समय मर्यादा में पूर्ण नहीं होती। तो ये सब कारण को भी जोड़ के देख लेना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, डेफिनेटली सर, महकम तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और शैक्षणिक स्टाफ जिसकी नियुक्ति शिक्षक की तरीके से हुई है वो वर्ग खंड में ही दिखना चाहिए, चाहे वो संघ का बहुत बड़ा होद्देदार क्यों ना हो। सरकार इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो अपॉइंट हैं वो वर्ग खंड में जाएं। ह्यूमन रिसोर्स जो अपॉइंट हैं वो अपनी तरीके से स्वतंत्र तरीके से पढ़ाएं। आज शिक्षा जो है वो निर्देशात्मक हो गई है। एनसीईआरटी से डायरेक्शन फ्लो होते हैं, एससीईआरटी से फ्लो होते हैं, एसएसएस फ्लो होते हैं, एमएचआरडी दिल्ली से फ्लो होते हैं, ईडीए स्टेट से फ्लो होते हैं। शिक्षक को तो इन्होंने स्वतंत्र रखा ही नहीं। अब ये ड्रॉप आउट का सवाल है, तो वहां पे ऐसा है कि 9वीं 10वीं के बाद में जो बच्चा होता है वो आईटीआई में जा सकता है, पॉलिटेक्निक में जा सकता है, उसके बाद में डिफरेंट फैकल्टीज और इवन कंप्यूटराइजेशन के कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। सवाल ये है कि जो हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध हैं विविध शाखाओं में इन बच्चों के, विद्यार्थियों के जाने के, क्या वो डेटा हम संकलित कर पाएंगे? क्या नागरिकों के सामने हम सच्ची खबर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? और जो सर्वे होते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और बाल विकास के जो भी अधिकारी होते हैं उनके जरिए ये आंकड़े प्राप्त करने चाहिए। हमें तीसरी एजेंसीज पे डिपेंड रहने की जरूरत क्या है? क्योंकि तीसरी एजेंसी ऑफिसेज में जाके आंकड़े इकट्ठे करती है या फील्ड में जाके आंकड़े इकट्ठा करती है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर ये आंकड़े तो सरकार के पास तो होने चाहिए ना। जैसे एग्रीकल्चर का आंकड़ा, मतलब 33 जिलों की हम बात करते हैं, तो गांधीनगर में मिलना चाहिए आराम से। तो ऑफिशियली आपको नहीं लगता, ऑफिशियली नहीं लगता, अगर एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं 2021-22 का आंकड़ा है, तो ताजा तरीन जो आंकड़ा 5.4% जो दिखाया है, तो उसका भी एक थोड़ा एक प्रेस नोट दे देना चाहिए कि नहीं ये स्थिति है, हम इतने बच्चे ट्रेस नहीं कर पाए, अनट्रेस है, उसको मतलब हम मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज पूरी हो रही है। लेकिन जहां तक सरकारी आंकड़े की बात है, हर वक्त वो आंकड़े पे सवाल होता है सर, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जब विद्या समीक्षा केंद्र आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बताया है और उसको इंटरनेशनली ग्लोरीफाइड किया गया है, तो क्यों ना हम उसका बेस्ट उपयोग करें? क्यों वहां कंप्यूटर ऑपरेटर्स पे हमारी डिपेंडेंसी रहती है? विद्या समीक्षा केंद्र में 50 के करीब अधिकारी हैं, क्यों हम एक को जवाबदारी नहीं दे सकते? क्यों 2, 3, 4 को जवाबदारी नहीं दे सकते? हमारी डिपेंडेंसी, इतने लाचार हो गए हम कि इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होके एक कंप्यूटर ऑपरेटर के हाथों में खेल रहे हैं। आज दिन तक उसने फ्लोर पे कभी भी लेके नहीं आया है कि ये ड्रॉप आउट के क्या कारण है। आज दिन तक किसी भी जगह से ड्रॉप आउट के कारण डिटेक्ट नहीं हुए। जब तक कारण डिटेक्ट नहीं होते तब तक हम सामाजिक आर्थिक पहलू पर विद्यार्थियों और पेरेंट्स को फोर्स ऑन नहीं कर सकते कि शिक्षा का क्या महत्व है और आपको शिक्षा ग्रहण क्यों करनी चाहिए। सर कारण जानने से पहले बच्चों को ट्रेस करना पड़ेगा ना। अगर ये आंकड़ा सही है कि इतने बच्चे 7.58 लाख से भी ज्यादा, और अकेले अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करिए तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेस ही नहीं हुए। ट्रेस करेंगे, बाद में कारण पता चलेगा ना। नहीं सर, एक चीज आहिर साहब मैं आपको बहुत प्लेन बता दूं, मैं वस्त्रापुर में रह रहा हूं और ये 132 फीट रिंग रोड को जो अल्फा मॉल से रोड कनेक्ट करता है, वहां पे झूपड़ झोंकी वाले रहते हैं और बच्चों को मैंने वहां पढ़ते देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सवाल ये है कि अगर एनजीओ उनको पढ़ा रहा है
या कोई और संस्था उनको पढ़ा रही है, तो उसका लिंक जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस से होना चाहिए। एनजीओ की भी जवाबदारी बनती है कि जो प्रयत्न वो कर रहे हैं उसकी जानकारी वहां दें। प्रेस तो बच्चे जो होते हैं वो एसएसएम में आपके चाइल्ड ट्रैकिंग मेथड है, उस हिसाब से ये सालों से काम कर रहे हैं। और आज भी अगर ट्रेस की बात है तो कार्यप्रणाली पे शंका होना 100% बात रही। तो यह हर साल क्या सर एक्सरसाइज होती है? ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का थोड़ा आइडिया आया था, कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में क्यों हम मतलब पीछे हो रहे हैं? क्योंकि 4-5 सालों से सभी के कानों में एक ही गूंज है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि रिमोट एरिया में या छोटे गांव में से मतलब जो बच्चे आते हैं उनको एक सेंटर पे लाके आप एजुकेट कीजिए, अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये वर्कआउट हो रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने तो एजुकेशन सिस्टम में इतने साल गुजारे हैं। ये देखिए, इंडिविजुअल टीचर लेवल पे और स्कूल लेवल पे ये चीज वर्कआउट होनी चाहिए। रूरल बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे ये चीज वर्कआउट नहीं होती, क्योंकि टीचर्स को और कामों में भी एंगेज रहना पड़ता है। ये टोटल डेडिकेशन का काम है, ये एजुकेशन है, एक लर्निंग एस्पेक्ट है जिसमें टीचर भी सीखता है, सोसाइटी भी सीखती है, नेता भी सीखते हैं और एजुकेशन के ऑफिसर भी सीखते हैं। हम ये कंसेप्ट भूल जाते हैं कि ऑल टुगेदर एजुकेशन इज अ लर्निंग सिस्टम। इट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड बाय एडिशनल वर्क ऑफ नॉन टीचिंग एप्टीट्यूड। इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। इतनी चर्चाएं चल रही हैं, इतना मीडिया में आ रहा है, इसके बावजूद शिक्षण विभाग राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे इस मामले में कोई सहनशीलता नहीं दर्शा रहा। मेरे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश और राजस्थान के मित्र हैं, वहां पे भी मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में तो सुसाइड हो रहे हैं अभी। तो ये किस तरीके की बातें हैं कि शिक्षक गण अंडर प्रेशर काम कर रहा है। हमें उन्हें मुक्त रखना चाहिए। शिक्षा मुक्ति सिखाती है, शिक्षा स्वतंत्रता सिखाती है। यहां आप उसको निर्देशात्मक बना रहे हो, वहां आपको शोषित कर रहे हो, वहां दासत्व की ओर ले जा रहे हो। हॉरिबल। तो सर ये एक चीज ये भी नहीं बनती, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल से या सरकारी स्कूल से कोई बच्चा अगर अपना नाम कटवाता है, मतलब अपने माता पिता की ओर से, तो उनको माता पिता से भी क्या नहीं मिलना चाहिए? आपको क्या दिक्कत है? आपको मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में या फिर स्कूल से क्या दिक्कत है? क्या ये एनालिसिस नहीं होना चाहिए अगर हम सही में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं? नहीं, आहिर साहब, ऐसा है कि ये रूल नंबर 70 का क्लोज है कि किसी विद्यार्थी को अधवच्चेથી શાળા છોડવામાં આવે તો એના વાલીનો સંપર્ક કરીને એના કારણો જાણવા। तो ये तो क्लोज है, हमें उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज 1949 में ये क्लोज है और हम 2024 में उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा लैप्सेस है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो ह्यूमन रिसोर्सेज उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सभी एक्सरसाइजेस जीरो पे लाकर वापस से शुरू करने की जरूरत है। और बॉम्बे प्राइमरी एजुकेशन एक्ट नियम का 1949 का रूल नंबर 70 इन टोटो अप्लाई कर देना चाहिए, जहां शिक्षक स्वायत्त है, स्वतंत्र है। और नॉन टीचिंग की जो कामगिरी है वो एक्ट में ना है, तो वो एक्ट के ना होने की वजह से सभी को डायरेक्शन दे दी जानी चाहिए डिपार्टमेंट को कि शिक्षकों की कहीं पे भी सर्विसेज अवेल नहीं की जाए। सर एक मिनट, एक शिक्षक है, एक मतलब अच्छे टीचर ने कहा था मेरे कि शिक्षक वर्ग खंड में होना चाहिए, उसको जगह नहीं छोड़नी चाहिए, और देश का सैनिक है उसको बॉर्डर पे रहना चाहिए। अगर दोनों मतलब अपनी जगह छोड़ते हैं या फिर अपनी जगह पे नहीं होते तो उसके काफी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दूसरी चीज ये कि शिक्षक के पास आप बीएलओ की बात कर लीजिए, अगर विपत्ति आती है कुदरती, कोई भी मतलब कोई भी कैलेमिटीज आती है उसके लिए ठीक है, इलेक्शन के लिए ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए ठीक है, 3 चीजें। उसके अलावा और 10 चीजें हैं जो करवाई जाती है। तीसरी बात ये, आपने संघ की बात की, संघ के जो पदाधिकारी है आपने बीच में बोला, वो कितने दिन स्कूल में जाते हैं, वो कितने दिन क्लास में जाते हैं? तो ये क्या हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि इसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है क्या, या फिर कोई एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है? नहीं, वर्कआउट होना चाहिए प्रवीण भाई। ऐसे देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए
कि जब उसके शिक्षक की तरीके से नियुक्ति हुई तो प्रथम काम उसका वर्गखंड में जाने का है। यूनियन की बिल्डिंग है या सचिवालय, और वहां जाके उसको हर दिन कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। डिफिकल्टी अगर एक दिन आती है, 2 दिन आती है, 4 दिन आती है, और उनको 10 छुट्टियां, या हो सकता है कोई नियमों में चेंज हुआ हो तो 10 से कुछ ज्यादा छुट्टी मिले, पर ऑल टुगेदर वो वर्गखंड में जाना चाहिए। और इसकी मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट लेवल पे मिनिस्ट्रियल उससे होनी चाहिए। आप पॉलिटिकली इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। सर, हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां पे लाइव मॉनिटरिंग है, सब डेटा अवेलेबल है, फिर भी लेटेस्ट डेटा का इंतजार है। पर एजुकेशन वहां इन मिनिस्टर ने लोगों तो को बोल दिया, खासियत लेकिन की अगर बात आए नहीं। लेटेस्ट डेटा तो बखूबी हम वो भी उसको फ्लैश करेंगे कि सही में ड्रॉप आउट रेशियो 23% से 5.4% तक आ गया। मतलब एकदम मजाक तो हो रही है या तुम- फिर गलती से मजाक हो रही है? नहीं, देखिए, एक चीज है कि कोई भी चीज होती है तो वो ग्रेजुअली उतरती है हाँ। और ग्रेजुअली चढ़ती है। कोई स्टिप राइज या स्टिप फॉल आउट होता नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि शिक्षण विभाग के पास में जो मशीनरी है उसको दूसरे कामों में उपयोग करने की जगह हम अगर शिक्षण व्यवस्था सुधारने में और उसके बाद में उसको व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाकर और गुणवत्ता प्राप्त करने में हम निष्ठावान हो जाए तो ये समस्या आज दिख रही है, 2, 4, 6 साल बाद में शून्य हो सकती है। पर सवाल ये है कि हमें डेडिकेशन है और मात्र शिक्षण का काम करना है, तभी ये संभावित है। और ये नेशनल लेवल पे अगर ये चीज जाती हो, और आप अगर इसकी लिंक कहीं भेज सकते हो तो आप भेजिए। और मेरा MHRD दिल्ली से और ED दिल्ली से ये अनुरोध है कि आप अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाइए, और जिसकी नियुक्ति शिक्षक की तरीके से हुई है वो वर्गखंड में ही दिखना चाहिए, अन्यथा नहीं दिखना चाहिए। ओके, धन्यवाद पोटा साहब। थोड़ी समय की पाबंदी है, लेकिन जो भी आपने अपने विचार रखे वो सही में विचार लायक है। तो मात्र મુદ્દો ડ્રોપ આઉટનો નથી, પરંતુ ડ્રોપ આઉટ કેમ થાય છે બાળકનું શિક્ષણમાંથી? કારણો અલગ છે, કારણો જાણવાનું કામ પણ શિક્ષણ વિભાગનું છે. જો 1 લાખથી વધુ બાળકો માત્ર અમદાવાદમાં જો આંકડા પ્રમાણે જો આંકડો સાચો હોય કે ટ્રેસ બહાર જ ટ્રેસ જ નથી થયા, ટ્રેસ ન થયા હોય તો કારણો કઈ રીતે જાણી શકાશે? 7 લાખથી વધુ બાળકો રાજ્યભરમાં હોય, ભલે શિક્ષણ મંત્રી એ તો સ્વીકારે છે કે 21-22માં આ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો હતો, પણ હવે 5.4% છે. તો ઓફિશિયલી સરકારી આંકડો પણ સરકારે જાહેર કરવો જોઈએ ને. સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સથી માનીને જે યોજનાઓ ખરેખર સારી છે, અમલવારી સારી થઈ રહી છે, એનાથી શું ફરક પડ્યો એ જે સામાન્ય ગામડાનો વ્યક્તિ છે કે જે મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર કે જેનું બાળક એ શાળામાં ભણે છે એને અનુભૂતિ થાય અથવા અનુભવ થાય એ પ્રકારનો એક્સપિરિયન્સ કરાવવાનું કામ પણ સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગનું છે. ન કે માત્ર સત્તા પક્ષ અને બીજેપી એકબીજાના સવાલોના જવાબ આપતા રહે, પરંતુ પરિણામ પણ આપતા રહે ને પરિણામની અસર ખુલ્લી આંખે પણ દેખાવી જોઈએ. અપેક્ષા રાખીએ કે દાવો તો શિક્ષણ મંત્રીએ કર્યો છે, પણ ખરેખર જો ગુજરાતનું શિક્ષણ મોડેલ વાઇબ્રન્ટ હોય તો પછી કરંટ આંકડાઓ પણ જાહેર કરવા જોઈએ. શું સુધારો આવ્યો 2 વર્ષમાં અને કયા કયા કારણોસર સુધારો આવ્યો 2 વર્ષમાં એ પણ જાહેર કરવું જોઈએ. નમસ્કાર.